Seeing then that we have a great high priest. So now, the author is saying that now we don't have just a high priest, we have a great high priest. अब हमारे लिए वो लेखक ये कह रहा है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक महायाजक नहीं है, एक महान महायाजक है. And why is Jesus not just a high priest and a great high priest that we are going to learn today? और क्यों मसीह यीशु केवल एक महायाजक नहीं, वो महान महायाजक है, वो आज हम सीखेंगे. क्योंकि ये जो यीशु मसीह महान महायाजक है, ये पर्दे में से नहीं गया. He passed through the heavens. क्योंकि ये जो महान महायाजक है, he did not go through a curtain, लेकिन वो स्वर्ग में से होता हुआ गया. Okay? जो हमारा महायाजक है, But now a high priest, वो पर्दे के बीच में से नहीं गया. he didn't just go through He the curtain. crossed through the heavens. He एक रास्ता बनाता हुआ गया बीच में से, एक ऐसा छेद करता हुआ ऊपर गया. He went passing through the heavens, making a way through that. Amen. That means when Jesus is my high priest today, my prayers are unobstructed because he has made a way for me. इसका मतलब जब यीशु मेरा महायाजक है तो मेरी प्रार्थनाओं पर कोई रोक नहीं लग सकती, क्योंकि उसने मेरे लिए मार्ग को तैयार किया है. हालेलुया. दुष्ट आत्माओं ने जो आर्मर्ड वॉल बनाई थी, यीशु मसीह फोड़ता हुआ उसको चीरता हुआ चला गया तीसरे स्वर्ग में. The wall that the demonic powers had made, Jesus broke it, shattered it into and passed into the heavens. Okay? And I'll show you from the scripture. Let's come back to 1 Peter 3:22. पहला पत्रस 3 उसका 22. I've told you, if you never want to go in error, always the scripture should interpret scripture. अगर कभी गलती में नहीं पढ़ना चाहते तो हमेशा वचन ही से वचन का अनुवाद करो. Okay? पहला पत्रस 3:22. Who has gone through the heaven? Again, are you seeing the analogy? Peter is saying the same thing. Who has gone into heaven and is at the right hand of God, angels and authorities and powers having been made subject to him. वह स्वर्ग पर या स्वर्ग में से जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए हैं. Okay, it is talking about evil spirits, the same angels who came to fight when Daniel was praying. Now all these they have said, we give up. ये बात कर रहा है उन दुष्ट ताकतों की, प्रधानताओं की, जो लड़ने के लिए आए थे दानियल के समय में उस स्वर्गदूत से. अब वो सब कहते हैं हम हार मानते हैं. He has passed through the heavens. वो स्वर्ग में से होता हुआ गया. वो कैसे, यहां से हम देखते हैं क्या हुआ. वो पहले स्वर्गों में से होता हुआ दूसरे स्वर्ग को चीरता हुआ तीसरे स्वर्ग में गया और पिता के दाहिने हाथ में जा बैठा. He went from the first heavens, penetrating into the second heavens, went into the third heaven and went and sat next to the Father on his right hand. Okay, ये क्लियर है आपको? तो आज नहीं डरना, अब नहीं कहना कि मेरी प्रार्थना रोक रहा है कोई दुष्ट आत्मा. So now don't ever say that some demonic spirit is stopping my prayers. Amen. दूसरे स्वर्ग को फोड़ दिया यीशु मसीह ने. Jesus has broken through the second heavens. Amen. The way has been made open, the Bible वो says. रास्ता खोल दिया गया है, बाइबल कहती है. Amen. अब सुनो, वापस आते हैं. Seeing then, that's why he is a great high priest. इसीलिए वो एक महान महायाजक He's है. not just a high priest. वो सिर्फ महायाजक He's a नहीं, great high priest. वो एक महान महायाजक है. क्योंकि उसने सेवा शैडो और कॉपी की बनी हुई चीज में नहीं करी. जिस चीज की वो कॉपी और शैडो थी, वहां वो अपना लहू लेकर गया. Because he did not serve in the place that was made as a shadow or a copy, but he went to the very place out of which the shadow and copy was done. पुराने नियम का जो महायाजक था, बाइबल कहती है वो बकरियों का, बैलों का लहू लेकर अति पवित्र स्थान पे जाता था. The Old Testament high priest used to take the blood of bulls and goats into the high place. मगर यीशु मसीह जो हमारा महान महायाजक है, वो अपना लहू लेकर पृथ्वी के तंबू में नहीं, स्वर्गीय तंबू में गया और उसने अपना लहू हमारे पापों के लिए चढ़ाया. और बाइबल कहती है साल में एक बार नहीं, केवल एक बार सदा के लिए अब हम परमेश्वर की नजर में ग्रहण कर लिए गए हैं. Because Jesus, our high priest, he took his own blood, penetrated into the heavens and went before the Father, not once every year, but for one time he did it. And the Bible says we are accepted in the beloved before the Father. प्रॉब्लम क्या है? देखिए, क्योंकि फोकस मसीह नहीं है. आज की शिक्षा कई वो आपको सेंटर्ड बनाती है. तो आपको क्या लगता है मेरे को परमेश्वर कब ग्रहण करता है? जब मैं बहुत उपवास और प्रार्थना करता हूं.
परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं ग्रहण किया क्योंकि आप बहुत उपवास और प्रार्थना करते हो, वो तो फरीसी भी करते थे। परमेश्वर ने आपको इसलिए ग्रहण किया क्योंकि उसने आपके महायाजक को ग्रहण किया। God has not accepted you because you fast and pray too much, because even the Pharisees used to fast and pray a lot. God has accepted you because he has accepted your high priest. So now Jesus as high priest, जब पिता ने उसके बलिदान को ग्रहण किया और बलिदान के साथ महायाजक को ग्रहण किया, यानी हम सब अब ग्रहण योग्य हो गए। When the Father accepted the sacrifice, and with the sacrifice accepted the high priest, with the high priest he accepted all of us in him. Okay, now hear this, let's come back. For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses. क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारी कमजोरियों में दुखी ना हो। कितने लोगों को यहां पर कभी ऐसा लगा है कि जिस चीज से आप जा रहे हो, अगर आप किसी को बताओ भी वो समझ नहीं सकता? कोई अगर है हाथ तो उठाओ। How many people मुझे भी लगा ऐसा, सच बोलने की बात है। How many people कभी आप ऐसे, तो बाइबल हमें बताती है हमारा एक ऐसा महायाजक है The Bible tells us we have such a high priest who can sympathize with our weaknesses. जो हमारी उन दुर्बलताओं में सहानुभूति रखता है हमारे और प्रति। ये जो शब्द sympathize है, ये sympathio शब्द से आता है। ये sympathize शब्द it comes from sympathio. और ये इतना सुंदर शब्द है ना, ये केवल नए नियम में 2 बार कहा गया है और केवल इब्रानी की पुस्तक में महायाजक के कॉन्टेक्स्ट में कहा गया। This is such a beautiful word. It has only been used twice in the New Testament and both the times in Hebrews in reference to the high priest. और इसका जो मतलब है, it means to suffer along with. It means इसका अर्थ है साथ में सहना या साथ में किसी से सताव को ले लेना। आप सोच सकते हो बाइबल कह रही है इसका मतलब क्या है? जब कभी आप किसी दुख से, जब कभी आप कभी बुरे टाइम से गए हो, जो आपने सहा है आपके महायाजक ने आपके साथ सहा है। That means the Bible is saying whenever you've been through a hard time in life, whenever you suffered something, your high priest has suffered with you. और ये जो शब्द वीकनेसेस है, ये शब्द फिजिकल वीकनेस के बारे में भी है, बीमारियों के बारे में भी है, ये मेंटल वीकनेसेस के बारे में भी है, ये कमियों के बारे में भी है। यानी अगर आप किसी दर्द में थे, किसी बीमारी में थे, वो दर्द केवल आपने नहीं झेला, आपके महायाजक ने वही दर्द आपके साथ झेला। And this word weakness includes your physical ailments, your mental torment, every pain and suffering you have ever suffered, your high priest has suffered with you. That's why Jesus is a great high priest. इसीलिए यीशु एक महान महायाजक है। Nobody can take his place. कोई उसका स्थान ले ही नहीं सकता। देखो क्या लिखा है, वो हमारे साथ दुखी ना हो सके। हमारा ऐसा महायाजक नहीं, यानी जब आप दुखी हुए वो आपके साथ दुखी हुआ। We don't have such a high priest who cannot sympathize with us. When you were sorrowful, he suffered it with It's you. not an empty empathy or sympathy. Oh, अरे कितना बुरा हुआ उसके साथ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा महायाजक नहीं है। ये खोखला तरस दिखाना नहीं है कि हाय ऐसा हो गया, but this is not who our high क्योंकि हम priest is. we are limited by our humanity. अगर आप किसी, आप फील भी करना चाहे, आप नहीं फील कर सकते। अगर दूसरा व्यक्ति जिस चीज से जा रहा है, आप नहीं फील कर सकते उसको। हम अपनी इंसानियत से सीमित हैं। We can never truly feel what someone else is going through. मगर बाइबल कह रही है हमारा एक ऐसा महान महायाजक